temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Last week we had been studying on developing spiritual disciplines. पिछले हफ्ते से हम आत्मिक अनुशासन को बढ़ाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। Many people are addicted to unnecessary things and taking all their time away. बहुत से लोग जो हैं वो बेकार की बातों के आदी हो गए हैं और अपना सारा समय ऐसे ही वो बर्बाद करते चले जाते हैं। Sometimes it's bad habits like drinking, drugs, alcohol and all sort of things. कई बार ये बुरी आदतें होती हैं जैसे कि शराब पीना, ड्रग्स लेना और हर तरह की ये सारी बुरी आदतें उनके जीवन में पाई जाती हैं। And sometimes it's towards evil pornography on the internet and all bad stuff on the internet. और कई बार तो ये केवल इंटरनेट के ऊपर अश्लील बातों को देखना या हर तरह की बुरी बातों को देखते चले जाने की आदत होती है। It's very common nowadays और इन दिनों में ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात हो चुकी है, because in everybody's hand there is a smartphone which you can take you to all the unsmart places. क्योंकि इन दिनों में सभी लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है और यह आपको बेकार की बातों की ओर बड़ी आसानी से ले जाता है And you become addicted. और फिर आप उसके आदी हो जाते हैं। But we need to develop certain spiritual disciplines in our life. लेकिन हमें अपने जीवन में कुछ आत्मिक अनुशासन को बढ़ाते चले जाना होगा। Spiritual habits which will help you to overcome all these. ऐसी कुछ आत्मिक आदतें लानी होगी जिसके कारण आप इन बातों पर जय प्राप्त कर सकें। And any habit takes around 1 month to 6 weeks to develop it. और किसी भी आदत को बनाने के लिए लगभग 1 महीने या फिर बस केवल 6 हफ्तों की जरूरत होती है कि आप उसे अपनी आदत बना लें। If you do it every day, it will become a habit. अगर आप इसे प्रतिदिन करते चले जाएंगे तो ये आपकी आदत हो जाएगी। So the first good habit we saw last week was developing an habit of studying the Word of God daily. और इसीलिए जो सबसे पहली हमने ये आदत जो देखी है वो ये है कि परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ने की आदत रखें। It's a very good discipline और ये तो एक बहुत ही अच्छा अनुशासन है, because the Word of God brings light into your life. क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में ज्योति लेकर आता है। And when light comes, the darkness will leave your और life. जब ज्योति आती है तो अंधकार आपको छोड़कर चला जाता है। And the more and more time you spend studying the Word of God, meditating and obeying the Word of God, और जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में, उस पर मनन करने में और उसकी आज्ञा मानने में बिताते हैं, you will grow spiritually. आप आत्मिक रीति से बढ़ते जाते हैं। Your fellowship with God will become stronger and stronger. परमेश्वर के साथ की आपकी संगति और भी बलवान होती जाती है And you will be able to break addictions from your life. और आप अपने जीवन से इन सारी बुरी आदतों को तोड़ पाएंगे। Because the Bible says the truth, you will know the truth and the truth will set you free. क्योंकि बाइबल इस तरह से कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इस तरह से वचन बताता है। It is spiritual food. और ये तो हमारा आत्मिक भोजन है And we need to learn how to meditate on the Word of God. और हमें सीखना होगा कि हम कैसे परमेश्वर के वचन पर मनन करें। So today a few minutes I'll talk about meditating on the Word of God. और इसलिए आज मैं कुछ पलों में आपको प्रभु वचन पर मनन करने के बारे में बताऊंगा। It's not just reading and forgetting. और ये तो केवल बाइबल पढ़ना और उसे भूल जाना नहीं है। Take a passage, when you're reading, stop with the passage and meditate on it, think about it the whole day. आप उस वचन के भाग को लीजिए जिसे आप पढ़ रहे हैं और पूरा दिन भर आप उसके बारे में मनन करते रहें, उसके बारे में सोचते चले जाएं। Sometimes you can write it on a piece of paper, the references, whatever you want to think about. और कई बार जिन वचनों के बारे में आप सोचना चाहते हैं आप उसे पेपर के ऊपर लिख लीजिए, कागज पर लिख लीजिए Keep it in your pocket. और उसे आप अपनी जेब में रखिए। And whenever there's time, free time, you just bring it out and start thinking about it again and again. और जब भी आपके पास में खाली समय होता है तो आप उस पेपर को निकालिए, उसे पढ़िए और बार बार उसके बारे में सोचते चले जाइए। Sometimes you may need to meditate for weeks और कई बार हो सकता है कि आपको उस वचन के बारे में हफ्तों तक मनन करना पड़े until you get all the spiritual nourishment from that particular passage you're meditating on. और जब तक कि आप इन सारी बातों के ऊपर मनन जो कर रहे हैं उसमें से आप आत्मिक पोषण प्राप्त न कर ले तब तक इसे करते जाएं। It's better to meditate on one chapter and learn a lot of it in a few days rather than reading 20 chapters and learning nothing.
एक दिन में 20 अध्याय पढ़कर उसमें से कुछ भी न सीखने से तो अच्छा है कि आप एक अध्याय ले और उसके बारे में आप 20 दिन तक मनन करते चले जाएं और इससे आप अपने जीवन में पोषण प्राप्त करेंगे। So you need to spend time seriously studying the Word of God. और इसीलिए क्रमानुसार आपको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए समय निकालना है। Not here one chapter, there one chapter, not like that. ऐसे नहीं कि बस यहाँ से एक अध्याय पढ़ लिया, वहां से एक अध्याय पढ़ लिया, इस तरह से आपको नहीं करना है। Most people I have seen, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, when I ask them, what do you read in the Bible? जब मैं पूछता हूँ बाइबल में क्या पढ़ा है, I read a few Psalms. ओ मैंने कुछ भजन आज पढ़े हैं, Psalm 91, Psalm 23, like that. भजन संहिता 91, भजन संहिता 23, इस तरह से मैंने पढ़ा है, वो कहते हैं। And some Proverbs. और कुछ नीति वचन को मैंने पढ़ा, इस तरह से जवाब देते हैं। Mostly that's what they read, that's it. सामान्य रूप में वो ज्यादातर यही पढ़ते हैं, They don't study the Bible. वो बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं। The whole Bible is the Word of God. पूरी बाइबल परमेश्वर का वचन है। You need to study the Bible book by book serially until you finish the Bible and keep coming back to it again and again. आपको बाइबल की एक एक किताब का क्रमानुसार अध्ययन करना है और पूरे पढ़ने के बाद में आपको फिर से इसका अध्ययन करना शुरू करना होगा। As you keep reading, you're getting spiritual food. और जैसा आप इसे पढ़ते चले जाते हैं, आप आत्मिक भोजन प्राप्त करते हैं। Think on the Word of God and obey what the Word of God says. परमेश्वर के वचन के बारे में सोचते चले जाइए और ये जो कहता है उसकी आज्ञा माने। The Bible says it's not just the hearers but the doers who will be blessed. बाइबल ये कहती है कि केवल वचन सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन के अनुसार करने वाले लोग आशीष प्राप्त करते हैं। That was the first discipline of studying the Word of God, meditating on the Word of God. देखिए, सबसे पहला अनुशासन ये है कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करते चले जाएं। At least an hour a day. कम से कम दिन में 1 घंटा आपको ऐसा करना चाहिए। Do more if you have time. अगर आपके पास समय है तो आप इससे बढ़कर कीजिए। The second discipline we'll talk about. दूसरा अनुशासन जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं, The discipline of always having a heart of thanksgiving, praise and worship. ये तो ऐसा अनुशासन है कि हमेशा आप धन्यवाद, स्तुति और आराधना का दिल रखें। You know, we come to God as a coffee machine. देखिए, हम परमेश्वर के पास में ऐसे आते जैसे कि परमेश्वर कॉफी मशीन हो। Whenever you want a cup of coffee, जब भी आपको एक कप कॉफी चाहिए, put the 5 rupees and you get the cup. 5 रुपए आप वहां पर डालते हैं और आपको एक कप कॉफी मिल जाती है। So when you need something, you go and you pray. और इसलिए जब आपको कोई जरूरत होती है तब जाकर प्रार्थना करते हैं। That is like a coffee machine. वो तो कॉफी मशीन के जैसे व्यवहार करना है। When you don't need anything, you don't even think about it. और जब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती तो उसके बारे में सोचते भी नहीं You हैं। make it a spiritual discipline or habit of constantly thanking Him. आप एक तरह से आत्मिक अनुशासन बना लीजिए कि आप निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देते चले जाएंगे, उसे धन्यवाद देते रहेंगे। Constantly praising Him for His goodness and for His love and for His compassion. उसकी भलाई, उसके प्रेम और उसकी करुणा के लिए आप निरंतर उसे धन्यवाद देते चले जाएं। When you see the creation around you, जब आप अपने आसपास की सारी सृष्टि को देखते हैं, just thank Him worship Him for His greatness. आप बस उसे धन्यवाद दे, उसकी महानता के लिए उसकी आराधना करते चले जाएं। Worship Him because He's a holy God. वो पवित्र परमेश्वर, इसलिए उसकी आराधना करते जाएं। Worship Him because He is a God of, infinite God. वो तो अगणित परमेश्वर है, इसलिए आप उसकी आराधना करते चले जाएं। Such a great infinite God was willing to dwell in the heart of a simple human being. ऐसा महान और अगणित परमेश्वर, बड़ा परमेश्वर एक साधारण से मनुष्य के दिल में रहने के लिए तैयार है, ये बड़ी महान बात है। When we realize how great that is, और जब हम इस बात को जानते हैं कि ये सच में कितनी महान we बात should है, have an attitude of worship all the time. तो हमेशा हमारे पास में आराधना की भावना होनी चाहिए, आराधना का भाव हो। I try to make it a habit in my life. मैंने अपने जीवन में इस बात को आदत बनाने की कोशिश की है। I wake up and I start saying, thank you Lord, thank you wonderful, thank you for this day. और जैसे मैं सुबह जागता हूँ तो मैं कहता हूँ, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, इस अद्भुत दिन के लिए तेरा धन्यवाद हो। Before I get out of bed, I'm thanking Him for so many things. बिस्तर से उठने के पहले ही मैं बहुत सी बातों के लिए उसे धन्यवाद देता हूँ। I worship Him a lot. मैं उसकी बहुत आराधना करता हूँ। Because the time will come when we'll stand in the presence of God. क्योंकि एक समय आएगा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहेंगे। If you know Jesus Christ, you will live with God forever. अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आप सदा सदा के लिए परमेश्वर के साथ में रहेंगे। And that time there is no asking. और उस समय कोई मांगना नहीं होगा। Because you're in heaven, everything is there. क्योंकि आप तो स्वर्ग में रहेंगे और सब कुछ वहाँ पर पहले से ही है। That time it's only worship. और उस समय तो केवल आराधना ही वहाँ पर होगी। How much good it is if we can learn to worship while on this earth. और ये तो सच में कितनी भली बात होगी कि जब पृथ्वी पर आप रह रहे हैं, आप आराधना करना सीख लें। And we can continue worshiping Him for eternity. और कैसे हम अनंत काल तक उसकी आराधना करते चले जाएंगे। You know, when we worship God, जब हम परमेश्वर की आराधना करते when we हैं, praise Him, जब हम उसकी स्तुति करते when we हैं, give thanksgiving to Him, जब हम उसे धन्यवाद देते हैं, we enter His courts. हम उसके आंगनों में प्रवेश करते हैं। You know, we try to
fellowship with God, we try to find God, but we don't know how to enter the courts of God. हम परमेश्वर के साथ में संगति करना चाहते, उसके साथ रहना चाहते, लेकिन हम इस बात को नहीं जानते हैं कि कैसे हम परमेश्वर के उस आंगनों में प्रवेश करें। Like you're entering a palace or something. जैसे कि कहिए कि आप किसी महल में प्रवेश कर रहे हैं, There is a gate that you have to enter by. वहां पर एक फाटक होता है जिसमें से आपको भीतर जाना पड़ता है, You can't just jump the wall and enter any palace from any side. और आप महल में किसी भी तरीके से किसी भी कोने से दीवार फांद कर नहीं जा सकते To हैं। enter the presence of God, there is a way, there is a gate. परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए एक मार्ग है, एक फाटक है। Let us read from Psalms 100 and from verse 1 to 5. आइए भजन संहिता 100 वचन 1 से लेकर वचन 5 तक पढ़ते हैं। The Bible says, बाइबल इस तरह से कहती है, I'll read the whole 5 verses. मैं इन पूरे 5 वचनों को यहाँ पर पढ़ूंगा, It's a chapter of thanksgiving. और ये तो केवल धन्यवाद देने का अध्याय माना जाता है। Shout joyfully to the Lord, all the earth, and serve the Lord with gladness. Come before him with joyful singing. Verse 1 and 2. वचन 1 और 2, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। इस तरह से ये कहता है, Know that the Lord himself is God, and it is he who has made us, and not we ourselves. We are his people, the sheep of his pasture. निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। And it says in verse 4 and 5, beautiful verses, Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name. Verse 4. वचन 4, ये तो बहुत ही सुंदर वचन है, कहता है उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। इस तरह से ये बहुत ही सुंदर रूप में बताता है। Verse 5 says, For the Lord is good, and his loving kindness is everlasting, and his faithfulness to all generations. वचन 5, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। If you're a person who knows how to praise God and thank God and enter the court of God, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि परमेश्वर की स्तुति करना और उसे धन्यवाद देना जानते हैं, तो आप परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करते हैं, आप उसके फाटकों में से भीतर आते हैं। there are so many things to be thankful for. हमें धन्यवाद देने के लिए बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातों के लिए हम धन्यवाद दे सकते God हैं। has blessed us with, we are alive. That's a blessing. और देखिए, हम जीवित हैं, ये तो परमेश्वर की आशीष है। So many things could have gone wrong. और बहुत सी बातें तो हमारे जीवन में पूरी तरह से गलत हो सकती थी। You may not have woken up in the morning, you would have died in the night, who knows? कौन जाने, शायद आप सुबह जाग नहीं पाते थे, शायद रात को ही आप मर जाते थे, किसे पता है। On the road, you could have had an accident, who knows? और कौन जाने कि शायद रोड पर आपका एक्सीडेंट हो गया होता। Some terrible disease may come upon you, who knows? कौन जाने कि शायद कोई भयानक बीमारी आप पर आ पड़ती। Alive today, we are healthy, give thanks to God. आज हम जीवित हैं, हम तंदुरुस्त हैं, सेहत से भरे हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते चले जाइए। You have sunlight, you have rain, you have food to eat, you have clothes to wear, thank God. हमारे पास सूरज की रोशनी है, समय पर बारिश होती है, धूप निकलती है, सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते चले जाइए। You have family, you have children, thank God. आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, इन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। God has given us so much. परमेश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है। If you count them one by one, you can't even count the blessings you have received. अगर हम उन्हें एक एक करके गिनते चले जाए तो हमने जितनी आशीषें प्राप्त की है उन्हें कभी गिन नहीं पाएंगे। ये इतनी ज्यादा आशीषें हैं। Somebody had a dream. किसी ने सपना देखा In the dream, he went to heaven. और उस सपने में वो स्वर्ग में गया And he saw certain rooms with angels were so busy. और उसने ऐसे कमरों को देखा जहां पर स्वर्गदूत जो है वो तो बहुत बहुत व्यस्त थे। So he said, What are you doing? तो उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। Oh, we are receiving so many requests and prayers from earth that we are going to fulfill those prayers. ओ, हमने पृथ्वी पर से इतनी प्रार्थना और विनती को यहाँ पर पाया है कि हम उसे अभी यहाँ पर पूरा करते जा रहे हैं। God is sending us an assignment to meet that need of that person who is praying. परमेश्वर हमें इस काम पर भेज रहा है कि जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है उसकी इन सारी जरूरतों को हम पूरा करें। And then he went to another room. और फिर वो दूसरे एक और कमरे में गया And he found an angel sitting there, और वहां पर उसने एक स्वर्गदूत को बैठे हुए देखा। totally jobless, वो कोई काम नहीं कर रहा था, just sitting there and waiting. वो तो बस वहां बैठकर राह देख रहा था, इंतजार कर रहा And he था। asked them, What are you doing here? और उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। Said, This is the room where I record all the thanksgiving that comes back for the answers they received. ये तो ऐसा कमरा है जहां पर इन लोगों ने प्रार्थना का जो उत्तर पाया है उसके लिए जो धन्यवाद दिया है उसे मैं यहाँ पर लिख कर रखता हूँ। But I'm not getting any thanksgiving. लेकिन मुझे यहाँ पर किसी तरह से कोई धन्यवाद नहीं मिल रहा है So I'm not able to write anything. और वो तो कुछ भी नहीं लिख पा रहा था। And that is the situation with many of us. और हम में से बहुत से लोगों की बस यही तो परिस्थिति है। We don't make it a habit of having a thankful heart. हम हमेशा धन्यवाद देने वाले हृदय
हृदय को रखने की आदत नहीं रखते हैं। Whenever you're walking on the road, say, Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, you're so good. जब भी आप सड़क पर चलते हैं तो आप कहते जाइए, प्रभु तेरी भलाई के लिए धन्यवाद, तो इतना भला इसलिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। I praise you, Lord, you're such a loving God. प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तो इतना प्रेमी परमेश्वर है। How many of us keep doing it automatically, spontaneously? How many of us do that? हम में से कितने लोग इसे अपने आप करते हैं, अपने आप इसे करते चले जाते हैं, निरंतर करते हैं। Only when something terrible, you escape a terrible accident, then you say, oh, thank you, Lord, thank you, Lord. अगर आप किसी भयानक एक्सीडेंट से बच जाते हैं, केवल तभी आप कहते हैं धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे बचा लिया, तेरा धन्यवाद। Or when somebody get ill, maybe you'll say, okay, thank you, Lord. या फिर कोई बीमार पड़ता है तो उस समय आप कहते हैं ठीक है प्रभु, तेरा धन्यवाद कि मैं चंगा हूँ। But spontaneously, out of joy, out of your love for Him, do you thank Him every time? लेकिन क्या आप उसके लिए जो प्रेम रखते हैं उसके कारण हमेशा उसका धन्यवाद करते जाते हैं? Do you understand how gracious God has been to us? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कितना अनुग्रहकारी I है? want to be a person who's always thanking God for everything. मैं तो सारी बातों के लिए हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला व्यक्ति होना चाहता हूँ। I try to develop this habit. मैंने इस आदत को बनाने की कोशिश की है। Worshipping Him, thanking Him, praising Him. I try to develop this habit. मैंने आराधना करना, उसकी स्तुति करना, उसे धन्यवाद देने की आदत को बनाने की कोशिश की There है। are some people who say, brother, okay, you can thank Him and everything is fine. और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जब सब कुछ ठीक चल रहा है उस समय परमेश्वर को धन्यवाद देना ठीक है। But you don't know my situation. लेकिन आप मेरी परिस्थिति को नहीं जानते हैं। I'm going through so much problems in my life. मैं अपने जीवन में बड़ी समस्याओं से जा रहा My हूँ। marriage is almost breaking up. मेरा विवाह जो है वो तो बिल्कुल टूटने की कगार पर आ गया है। My son is in drugs. और मेरा बेटा तो ड्रग्स का आदी हो गया है। Oh, he's got very bad friends. और इसके दोस्त तो बहुत ही बुरे हैं। And he is coming drunk every day. और हर दिन ये शराब पीकर घर आता है। My husband is beating me. मेरा पति बस मुझे मारते रहता है। Now, how can I thank God? मैं कैसे परमेश्वर को धन्यवाद दूं? Why do you say thank Him in everything? आप सारी बातों में उससे धन्यवाद क्यों करते चली जाती हैं? My life is such a mess. I wonder how long I should live like this. मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद हो चुकी है कि मुझे पता नहीं कि मैं अभी और कितने साल तक जीवित रहूंगा। There is a verse in the Bible. बाइबल में एक वचन है। And I will just read that verse. मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। 1 Thessalonians chapter 5 and verse 18. पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 18, ये वचन है जो यहाँ पर हम पढ़ना चाहेंगे। It says, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इस तरह से ये वचन हमें बताता है। In all circumstances, यानी सारी परिस्थितियों में, even good or bad. चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी हो। You see, when we start thanking God, देखिए जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देने लगते हैं, though we are in a horrible condition, चाहे हम बहुत ही भयानक परिस्थिति में क्यों ना हो, though our son or daughter is addicted to something, चाहे हमारा बेटा या बेटी किसी तरह की बुरी आदतों में पड़े हैं, though our marriages are bad, चाहे हमारा वैवाहिक जीवन बहुत ही बुरी दशा में आ पहुंचा है, maybe the husband is beating the wife, शायद हो सकता है पति पत्नी को मार रहा हो, maybe there is no money for food शायद हो सकता है कि खाने के लिए पैसा ना हो because he's drinking all the money away, क्योंकि सारा पैसा तो शराब में उड़ा देते हैं, or maybe you don't have a job, you don't have enough money to eat your food. या फिर आपके पास में कोई नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है कि आप उससे भोजन कर सकें। Can you thank God in that situation? क्या आप उस परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? It requires faith to thank God. और परमेश्वर को ऐसी परिस्थिति में धन्यवाद देने के लिए विश्वास लगता है। What is that faith? और ये विश्वास क्या है? That God is a good God. कि परमेश्वर भला परमेश्वर है, He has good plans for us. उसके पास हमारे लिए अच्छी योजनाएं हैं। Even though I'm going through a bad situation, हालांकि मैं बुरी परिस्थिति में से होकर जा रहा हूँ, but God knows what is the outcome of all this. लेकिन परमेश्वर जानता है कि इन सारी बातों का क्या प्रतिफल होगा। God knows why He is taking me through this. परमेश्वर जानता है कि वो इन सारी बातों में से मुझे क्यों ले जा रहा है। Maybe there are spiritual lessons I must learn. शायद ऐसे कुछ आत्मिक पाठ होंगे जो मुझे सीखने जरूरी हैं। Maybe God wants to build my faith. शायद परमेश्वर मेरे विश्वास को मजबूत करना चाहता है। So in that situation, instead of grumbling and murmuring, और इसलिए ऐसी परिस्थिति में शिकायत करने और कुड़कुड़ाने के बजाय, instead of saying God doesn't care for me, ये कहने के बजाय कि प्रभु को परवाह नहीं है, oh He doesn't love me, वो तो मुझसे प्रेम नहीं करता है, instead of saying that, ये सब कुछ कहने के बजाय it's better to say, Lord, I thank you even though I'm going through trouble. ये कहना अच्छा है कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि सारी मुश्किलों में से मैं तो जा रहा हूँ, Because you know my situation. क्योंकि तू तो मेरी परिस्थिति को जानता है You're the only one who can help me. और केवल तू ही मेरी मदद कर सकता है। I want to just worship you. मैं बस तेरी आराधना करना चाहता हूँ In faith विश्वास के साथ that you will change my situation. तू मेरी परिस्थिति को बदल देगा। In faith विश्वास में that your plans for me are good. मेरे लिए तेरी योजनाएं तो भली योजनाएं हैं।
that when I come through all these things, कि जब मैं इन सारी बातों में से पार हो I जाऊंगा will become a more righteous person. तो मैं और ज्यादा धार्मिक व्यक्ति हो जाऊंगा। I want to thank you. मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। Even though my son is in a bad company, हालांकि मेरा बेटा अभी इस समय बुरी संगति में फंसा हुआ है, I thank you that your angel is with my son मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तेरा स्वर्गदूत मेरे बेटे के साथ में है and that your good plan for him will come to pass. और उसके लिए तेरी जो भली योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी। So like that, when you start thanking him and praising him in spite of the problem, इसलिए सारी समस्याओं के बावजूद जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते चले जाते हैं और उसकी आराधना or करते even हैं, like your husband is beating, Lord, I don't understand he's beating me, but yet I thank you for giving me this husband. या पति जब आपको मारते हैं तो इस तरह से कहते हैं कि प्रभु मुझे पता नहीं ये बार बार क्यों मुझे मारते हैं, लेकिन मैं इस पति के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। You don't have any problem, that's why you're saying that. ओ आपकी कोई समस्या नहीं है इसलिए तो आप इस तरह से कह रहे हैं, But I'm giving you a solution. लेकिन मैं आपको यहाँ पर हल दे रहा हूँ। When you start praising God and thanking him in the bad situation, जब आप बुरी परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, God will be happy and pleased to do something about the situation. तब परमेश्वर खुश होगा और उस परिस्थिति के बारे में कुछ न कुछ तो करेगा। Some situations nobody can help. कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें कोई मदद नहीं कर सकता है It's not in the hand of human being. और ये तो मनुष्य के हाथों में नहीं होती है, But there is a God who can do it. लेकिन एक परमेश्वर है जो इसे कर सकता है। There is a God who can touch your son. एक परमेश्वर है जो आपके बेटे को छू सकता है। There's a God who can change your husband or your wife. एक परमेश्वर है जो आपके पति या पत्नी को बदल सकता है। There's a God who can do anything. एक परमेश्वर है जो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। And especially for those who worship and thank him all the time, he is happy to do those things for them. और खास करके जो लोग हमेशा उसकी स्तुति आराधना करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ करने से वो बहुत खुश होता है। You know, when we spend time thanking and worshiping, it's like, even though the situation is bad, you are still believing that God is still in control. जब आप इन सारी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, तो आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अभी भी सारी बातों पर नियंत्रण कर रहा And है। that faith is what will move the hand of God. और इसी विश्वास के कारण परमेश्वर का हाथ वहां पर काम करेगा। The Bible says, बाइबल इस तरह से कहती है, without faith it is impossible to please God. विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना तो अनहोना है। He that comes to him जो उसके पास में आता है must believe that he is, उसे विश्वास करना होगा कि वो है, and he is the rewarder of those who diligently seek after him. और जो उसे खोजते हैं, ईमानदारी से उसे खोजते हैं, उन्हें वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, ये विश्वास करना होगा। So when you start thanking and worshiping God in spite of your terrible situation, और इसीलिए आपकी इन सारी भयानक परिस्थितियों के बावजूद जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना you करते say, हैं, Lord, I don't know why this situation is like this, but I thank you because you know. आप कहते हैं परमेश्वर मुझे पता नहीं कि ये सारी परिस्थितियां क्यों है, लेकिन मैं तेरे धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू इन सारी बातों को जानता है। I don't have any human being to help me, so I throw myself at your feet. मेरे पास मदद करने के लिए कोई भी मनुष्य नहीं है और इसीलिए मैं अपने आप को तेरे चरणों पर रख देता हूं मेरे परमेश्वर। God will be happy to answer your prayer. और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जवाब देने के लिए बड़ा खुश होगा। Job was a man in the Bible. बाइबल में अय्यूब नाम का एक मनुष्य था At that time, he was one of the richest men in that whole country. और उस समय वो तो अपने देश में, पूरे देश में सबसे धनी, सबसे अमीर व्यक्ति था। So much of wealth, उसके पास में इतनी धन संपत्ति थी, so many servants, उसके पास में इतने दास और दासियां थे sons and daughters. और उसके बहुत से बेटे और बेटियां थी। But in spite of all that, he had a man who feared God and who never committed sin. इस सब के बावजूद वो तो परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था और उसने कभी कोई पाप नहीं किया था। God boasted about Job to the devil. परमेश्वर ने शैतान के सामने अय्यूब के बारे में बहुत ही घमंड से कहा है There is no one in the earth like Job who fears God and turns away from evil. कि अय्यूब के जैसे इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं है जो परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। But once God gave permission to Satan to hit Job, एक बार परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वो अय्यूब पर हमला करे, because Satan said, "Oh, if you touch him, he will curse you." क्योंकि शैतान ने इस तरह से कहा था कि हे परमेश्वर, अगर तू उससे सब कुछ छीन ले तो वो पलट कर तुझे कोसने लगेगा। God had so much confidence in Job. और परमेश्वर तो अय्यूब पर इतना भरोसा रखता था, He allowed Satan to hit him very badly, और उसने शैतान को अनुमति दी कि वो उस पर बुरी तरह से हमला करे। such a way that none of us have experienced such a tragedy. ये तो इतनी दुखद बात थी जिसका हम में से कुछ लोगों ने कभी अनुभव नहीं किया है। His 10 children died in one day. उसके 10 बच्चे एक ही दिन में
मर गए थे। sons and daughters together. उसके बेटे और बेटियां सब मर गए। 10 of them died in one day. 10 के 10 एक ही दिन में मर गए। He lost his business in one day. वो एक दिन में ही अपना सारा व्यापार खो बैठा था। All his possessions were gone in one day. उसकी सारी संपत्ति, सारी चीजें बस एक दिन में चली गई। Health was gone in one day. एक ही दिन में उसकी सारी तंदुरुस्ती जो थी वो चली गई। At the end of all this, और फिर इन सब बातों के अंत में, instead of cursing God, इसके बजाय कि वो परमेश्वर को कोसे, instead of saying God doesn't care for me, ये कहने के बजाय कि परमेश्वर को मेरी परवाह नहीं है, I believed him and walked with him, look what I got. देखो मैंने उस पर विश्वास किया, मैंने उस पर भरोसा किया और इसके बदले में मुझे क्या मिला। Now, what sort of God is this? ये किस तरह का परमेश्वर है? He didn't say that. उसने ऐसा नहीं कहा। It says he shaved his head उसने अपना सिर मुंडवाया and he fell down before God. और परमेश्वर के सामने नीचे गिर गया And he said, blessed be the name of God. और उसने कहा कि परमेश्वर का नाम धन्य है। God has given, God has taken. Blessed be his holy name. परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया और इसीलिए उसका पवित्र नाम धन्य है। That is the attitude we need to have. हमें ऐसी मनोदशा रखनी है। I'm in the hands of God. मैं तो परमेश्वर के हाथों में हूँ। Whatever happens to me, मेरे साथ जो कुछ भी होता है I will give thanks to him. मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। I will give praise to him. मैं उसकी स्तुति करते चले जाऊंगा। For the one who sees the end from the beginning, जो शुरू से ही उस अंत को देख सकता है, he knows the path that I am taking. वो जानता है कि मैं किस मार्ग पर चल रहा हूँ And in the end, he will bring everything to good. और अंत में वो सारी बातों से भलाई उत्पन्न करेगा। With that faith, you must keep thanking God. इस विश्वास के साथ आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। Don't complain and murmur. आप इस तरह से शिकायत करते या फिर बुड़बुड़ाते हुए न रहें। And you will see the miracles that God will do. और आप देखेंगे कि परमेश्वर कौन से चमत्कार करता है। I want to ask you one thing before I close. संदेश खत्म करने के पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, Do you know this great God whom I am talking about that we can worship? जिस महान परमेश्वर के बारे में मैं बता रहा हूँ, जिसकी हम आराधना करते हैं, क्या आप उसे जानते हैं? Do you know this God whose courts you can enter with praise? क्या आप ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जिसके फाटकों में आप स्तुति के साथ में आ सकते हैं? Do you know this God who wants to have intimate fellowship with you? क्या आप इस परमेश्वर को जानते हैं जो आपके साथ में करीबी संबंध रखना चाहता है? There is a way that you can know it. और आप एक तरीके से उसे जान सकते हैं। God sent his only son Jesus Christ to this world. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। It's not a religion that we have created to reach God. ये कोई ऐसा धर्म नहीं है जो हमने बनाया है कि हम परमेश्वर तक पहुंच सके। God sent a way for us to come to him. परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग बनाया कि उसके द्वारा हम उसके पास पहुंचे। Jesus said, I am the way, the truth and the life. No one comes to God except through me. यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और बिना मेरे द्वारा प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। I will see you again next week. God bless you. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। परमेश्वर आपका आशीष दे।